आज हम पहुंचे हैं कोर्ट कम्प्लेक्स में। 9 महीने बाद, कोरोना काल के बाद आज पहले दिन कोर्ट शुरू हुआ है। यहां हम वकीलों से भी बात करेंगे कि 9 महीने जब ये कोर्ट बंद था उन्हें क्या मुश्किलें आ रही थी, आज जब ये कोर्ट खुला है तो क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। हम अब आपको ले चलते हैं बार काउंसिल के ऑफिस में, जहाँ पर सीनियर वकील बैठे होंगे। कोरोना काल में तमाम कोर्ट बंद थे, कैसे काम होता रहा, वकीलों को क्या क्या मुश्किलें आती रहीं। आज कई दिनों बाद, लगभग 9 महीनों के बाद पहले दिन कोर्ट खुले हैं। यहाँ वकील पहुँचे हुए हैं, थोड़ी कचहरी में चहल पहल भी है। हमारे साथ कुछ सीनियर वकील भी हैं, उनसे बात करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? अनिल पुरी। पुरी साहब, कितने दिन ਤੁਸੀਂ किस तरह बंद ਸੀਗਾ कोर्ट ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? मैं वर्चुअल करते घर से ही। ਵਰਚੁਅਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? वर्चुअल कभी ऑडियो खराब हो जाती, कभी वीडियो खराब हो जाती सी। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। सर नाल हमारे साथ हैं विजयंत खन्ना, सीनियर वकील हैं। विजयंत जी, आज तुसी करीब मेरे ख्याल 18 मार्च तो बाद ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੇ हैं। मैं ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ 2-3 ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੀ ਯੂਥ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਯੂਥ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਥ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਬੈਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਨਕਮ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। हमारे साथ हैं कशिश खन्ना, युवा वकील हैं। कशिश जी, तुसी कितने दिन हुए तुहानू प्रैक्टिस शुरू की? सर, मेरे को 3 इयर्स हो गए हैं कंप्लीट, और इसी लॉकडाउन में 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए। ड्यूरिंग लॉकडाउन एज अ जूनियर एडवोकेट मैं अपने आप को फ़िलहाल कंसिडर करता हूँ, बिकॉज माई फादर इज़ अ सीनियर एडवोकेट। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का जो है फेस करना पड़ा है, बिकॉज क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करना हमारे लिए एज अ जूनियर एडवोकेट मुश्किल हो जाता था कि भाई हम आपका काम जो है जल्दी से जल्दी नहीं करवा सकते। एंड नंबर 1 प्रॉब्लम जो रही है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी रही है। मेरे पास सपोर्ट थी मेरे फादर साहब की, बट बहुत ज़्यादा एडवोकेट्स जो हैं जो ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करते हैं, उनके पास ये सपोर्ट नहीं थी। तो उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट ज़रूर दिया बाहर ने, बट फिर भी जो है उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का बहुत सामना करना पड़ा। हमारे साथ कुछ और भी एडवोकेट हैं। क्या नाम है जी आपका? रमन चौधरी। मैडम, कोरोना काल के बाद आज बहुत दिनों बाद कोर्ट खुले हैं, तो आपको अब क्या मुश्किल आती रही कोरोना काल के दौरान? अभी तो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आ रही फिलहाल तो। अभी नहीं, मतलब कोर्ट के तो अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारे जो वकील लोग हैं वो घरों से निकले हैं और नॉर्मल रूटीन वर्क आ रहा है, वो तो सही लग रहा है। आपका नाम? I'm Advocate Nidhi Sharma and I'm practicing from past 10 years in this court.
एंड कोई इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है। हमसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स ने सफ़र किया है, लेडीज़ ने बहुत सफ़र किया है। जिन लेडीज़ के मैट्रिमोनियल केसेस चलते थे वो एकदम से ऐसे बंद हुआ, जिनकी पेमेंट्स आती थी उनको पेमेंट आनी बंद हो गई। और लेडीज़ ने, क्लाइंट्स ने, सब ने बहुत सफ़र किया है, बुज़ुर्गों ने बहुत सफ़र किया है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसेस किए होते हैं, उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन चलते रहे हैं मैटर्स, चलते रहे, जैसे कि स्टे और बेल मैटर टेकअप होते रहे हैं। लेकिन ऑल एंड ऑल मैं ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी ने सफ़र किया है, हमारे क्लाइंट्स ने सफ़र किया है, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा प्रोफेशन है जहाँ पे हम लोगों की तकलीफ़ को आगे लेके जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। लेकिन हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका तभी मिलेगा जब कोर्ट्स वर्किंग होंगी। लेकिन जब तक कोर्ट्स वर्किंग ही नहीं होंगी तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसने अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया, इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम रिड्रेस तो तब करेंगे जब प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि वर्चुअली आपको दिक्कत आती थी कोर्ट को अपने केस को भी प्रेजेंट करने में? सर दिक्कत नहीं आती थी, बहुत दिक्कत आती थी। तो फाइनेंशियल मैटर में भी कितना नुकसान हुआ है? सर ऑब्वियसली जब काम ही नहीं होगा, जब क्लाइंट्स आएंगे ही नहीं, आप डील ही नहीं करोगे तो आप ऑब्वियसली आप फाइनेंशियली सफ़र करोगे। हमारी पूरी फ्रेटर्निटी ने सफ़र किया है उस चीज़ को लेकर के। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है जैसे आज कोर्ट खुले? सर हम बहुत खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारा काम है लोगों को मतलब जस्टिस दिलाना। अब हम इसलिए खुश हैं कि हम वाकई फाइनली उनके लिए कुछ कर पाएंगे। जिन लोगों से हमने ऑलरेडी फीसेस ले रखी थी उनके लिए हम फाइनली कुछ कर पाएंगे। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज़ मंजू सिंह एडवोकेट। तो आज देखिए 9 महीने बाद लगभग कोर्ट खुले हैं, तो इस 9 महीने के दौरान आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सर मुश्किलें तो सब पे थी, पूरे देश में ही मुश्किलें थे, तो देश में हम भी रह रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें भी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो क्लाइंट्स की हुई थी कि क्लाइंट्स हमारे जो थे वो बहुत सफ़र कर रहे थे और उनके साथ हमें भी करना पड़ रहा था। बीइंग प्रोफेशनल एडवोकेट देखा जाए तो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा था और लॉकडाउन में भी हुआ है, बट एक चीज़ अच्छी थी कि लॉकडाउन में भी हमें एक मौका मिला था कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से हम जुड़े और उसमें भी हमने यह क्लाइंट के साथ पूरा अपना साथ दिया, जो हम कर पाए उनके लिए किया। बस ये प्रॉब्लम थी कि हम ओपनली नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जो गवर्नमेंट्स ने एक रूल बनाए हुए थे कि बाहर आना जाना या वो बंद किया हुआ था, उस कारण थोड़ा हमें सफ़र करना पड़ा। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज कि आज कोर्ट्स खुल चुकी हैं और आज कोर्ट्स में भी देखने में अच्छा लग रहा है कि सारे हमारे कुलीग सीनियर्स जूनियर्स सब हम मिल रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि क्लाइंट्स को जो चीज़ चाहिए थी आज वो खुश है कि आज क्लाइंट्स देख रहा है कि जी हाँ हमारे जो केसेस चल रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स हमारे साथ जा रहे हैं, कोर्ट्स ओपन है, जजेस बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम जो उसको आज ख़त्म होना हम देख रहे हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? पंकज शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी 9 महीने कोर्ट बंद रहे, आज किस तरह फिर कोर्ट वर्चुअल लगी हैं? पहले वर्चुअल चल रही ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਆਰ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ऑनरेबल हाई कोर्ट ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ऑनरेबल मानयोग हाई कोर्ट ने जोड़ा वा बड़ा वड्डा एहसान किया है, जिहदे नाल नवे वकील जोड़े ने वो अपने आप को दोबारा इस प्रोफैशन के मुताबिक खड़ा भी कर पाएंगे और काम भी उन्होंने जोड़ा वा थोड़ा बहुत जरूर आएगा। अच्छा, ये हाई कोर्ट के आदेशों के नाल अज कोर्ट खुले है? बिल्कुल जी, मानयोग हाई कोर्ट ने मिति 8/1/2021 इन्हां कोर्ट्स नूं खोलण दा हुक्म किया है तो उसकी प्रवानगी जी है मानयोग सैशन जज साहब ने अज वास्ते दी सी, जिहदी हालातों के मुताबिक यह कचहरियां जिहड़ियां ने अज तो खोल दी गई हैं। धन्यवाद। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम एडवोकेट रोहन भगत है, एग्जैक्टिव मैंबर ऑफ ABA।
ਤੇ ਰੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੁਵਾ ਹੋ ਯੂਥ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੰਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਵੈਸੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟਸ। ਜੇ ਕੋਰਟਸ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਾफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस फील किया हर एक बंदे ने। क्या नाम है जी थोड़ा? विशाल शर्मा जी। शर्मा जी आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लगता कोर्ट आए हो। नहीं जी, कोर्ट तो असीं रोज़ ही आने, बट हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाल BCA की मुशक्कत के नाल जिहड़ी है कोर्ट की वर्किंग दोबारा रिज्यूम हुई है तो रूटीन वर्क शुरू होया तो उहदे लई लिटिगेंट्स भी बड़ा उत्साह है तो वकीलों च भी सारे उत्साह है। एक नवी रोशन चेतना आई है तो काम ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੌਣਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਫਾਰਮਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। देखिए ये थे तमाम वकील जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन्हें क्या क्या मुश्किलें आ रही थी, खासकर उन लोगों के लिए जो युवा हैं, अपने क्लाइंट को भी ये ठीक तरह इंसाफ नहीं दिला पाते थे। कई बार जो वर्चुअल कोर्ट है कनेक्शन कट जाता था कई तरह के, लेकिन आज ये बहुत खुश हैं, कचहरी की रौनक वापस लौटी है। अब हम बात करेंगे बार एसोसिएशन अमृतसर के प्रेसिडेंट विपिन ढंड के साथ, एडवोकेट विपिन ढंड के साथ, कि क्या क्या मुश्किलें आती थी, क्योंकि उन्हें कई जो युवा वकील थे जिनका कोई सोर्स नहीं था इनकम का, उनसे संपर्क करते रहे हैं। हम बात करते हैं एडवोकेट विपिन ढंड के साथ। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन अमृतसर के प्रेसिडेंट एडवोकेट विपिन ढंड से बात करते हैं कि आज 9 महीने के बाद कोर्ट खुले हैं। इन 9 महीने के दौरान वकीलों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ढंड साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ढंड साहब आज 9 महीने बाद कोर्ट खुले थे कि इस दौरान तो हुण क्या क्या ली जा रही हैं प्रिकॉशनस कि ताकि मुश्किल तो जी कोरोना का सी उहदा खौफ निकल सके? देखो अज तो 9 महीने पहला जदों कोविड-19 करके सारिया कोर्ट्स बंद हो गई और हाई कोर्ट के आदेश मुताबक वर्चुअल कोर्ट्स की शुरुआत हुई, जिहदे च अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ते होर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दे विच क्योंकि उहदे वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा नहीं तैयार सी ते बहुत दिक्कतां आ रही सी साडे एडवोकेट्स नूं और खासकर लिटिगेंट्स नूं कि कोई भी सुनवाई जिहड़ी प्रॉपर तरीके नाल नहीं हो पा रही सी ते इंसाफ दे विच बहुत ज़्यादा डिले हो रही सी। असी बार कौंसल दी रहनुमाई थले एक कमेटी बनी, उस एक्शन कमेटी ने अपने तौर पे सारियां ही बारां दे प्रेजिडेंट्स नूं बुलाया ते सारियां ने ही ये फैसला किया कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दे नाल मिल के ते कोर्ट्स का काम, फिजिकल कोर्ट का काम जिहड़ा जल्द तो जल्द चालू करवाउणा चाहीदा तां जो जिहड़ी एडवोकेट नूं मुश्किल आ रही है। खासकर मैं जिक्र करांगा जूनीयर एडवोकेट्स का, जिन्हां दी रोजी रोटी जिहड़ी बिल्कुल बंद होई पई सी और लिटिगेंट्स नूं भी बड़ी वड्डी दिक्कत सी कि इंसाफ दे विच जिन्नी देरी हो रही सी और जिन्ना कि नुकसान हो रहा सी लिटिगेंट्स का भी, लोकां दा जिहड़ा विश्वास आ वो जुडिशियल सिस्टम तो उठना शुरू हो गया सी। और असी चीफ जस्टिस दे नाल मीटिंग की, मीटिंग तो बाद साडियां सारियां बारां दीयां मंगां नूं मंनदे हुए चीफ जस्टिस ने एक इमीडिएट ऑर्डर जारी किया कि सारियां ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा दीयां फिजिकल वर्किंग जिहड़ी करनगियां और डेली दी रिपोर्ट जिहड़ी आ वो अपने अपने इंस्पैक्टिंग जज नूं, हाई कोर्ट जज नूं भेजणगियां कि किन्ने वजे कोर्ट का काम शुरू होया
ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਟੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ 3 ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸੇਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਟੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ कि सारा काम ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ चंगे तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ शुरू करिए अदालतों का। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप सैनी। इनसे भी बात करते हैं कि इस 9 महीने के दौरान ये सारा कैसे चलता रहा, वर्चुअल थी कोर्ट, कितनी मुश्किलें आती रही। सैनी साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सैनी साहब, 9 महीने कोविड ते महामारी सीगी विश्व ते किस तरह कोर्ट का कामकाज प्रभावित होता रहा? मेरा ख्याल है कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर प्रोफैशनल क्लास ने सफ़र किया तो एडवोकेट्स सीगे, क्योंकि वर्चुअल हीयरिंग दे विच बड़ियां प्रॉब्लम्स आईयां। टाइम टू टाइम जिहड़ी साडी इलैक्टेड बॉडी है इन्होंने वो जाके डिस्कस भी करते रहे हैं, लेकिन वो जिहड़ी प्रजेंटेशन इन द कोर्ट है वो प्रॉपर नहीं सी हैगी। और मैं अज बड़ी खुशी की गल है कि साडी लोकल बॉडी ने और बार काउंसल ने ये उपराला करके ये जिहड़ी फिजिकल हीयरिंग स्टार्ट की है ये वधाई दे पात्र है। ये नाल दो चीज़ों का फायदा होएगा, एक तो असी वकील अपना केस कोर्ट दे विच सही तरीके नाल प्रजेंट कर पावांगे, और दूसरा ये है कि जूनीयर लॉयर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अगर कोविड च मैक्सीमम सफ़र किया तो जूनीयर लॉयर्स ने किया है। और ये वधिया है, जिस तरह मिस्टर ढंड ने दसिया है ये मैंबर सीगे एक्शन कमेटी दे, ते बार काउंसल ने जी चीफ जस्टिस नाल इन्होंने मीटिंग करके लॉयर्स दी प्रॉब्लम दसियाँ। वधिया चीज़ है, अज हाई कोर्ट ने डिसीजन लिता है और सानू सारे लॉयर्स नू मैं भी अपील करांगा जिवें मिस्टर ढंड ने कहा कि आप हुण कोई बहाना ना लाइए कोर्ट्स दे विच, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर दे विच लिखा कि जिहड़े वकील है उत्थे जाके कामकाज करन। हुण असीं ये ना करिए कि एडजर्नमेंट लैण दी खातिर कह दिए जी कोविड है। सो मेरी भी एक जॉइंट अपील है टू ऑल द लॉयर्स कि देखो हुण टाइम है जिस टाइम के उत्ते असी अगर कोर्ट दे विच जावांगे फंक्शनिंग स्टार्ट होएगी, हाई कोर्ट भी कन्विंस होएगा कि ठीक है जी फंक्शनिंग है। लेकिन अगर जजिज की रिपोर्ट जानी शुरू हो गई कि जी असी एक कौंसल नूं ते बुलाने, दूजा कहंदा मैं कोविड के कारण ही है, उहदे नाल ये ना होवे कि फिर सानूं पुरानियां वो वर्चुअल हीयरिंग के उत्ते जाना पवे। सो एक बहुत ही वधिया
मैं कहूँगा कि बार काउंसिल और लोकल बार बॉडी ने ये स्टेप लेता है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमने सभी एडवोकेट्स के साथ बात की है, खासकर विपिन ढंड जो ये एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ भी इनकी मीटिंग होती रही थी, वकीलों की मुश्किलें भी ये जाकर बताते रहे हैं। कुछ जो सीनियर वकील थे उन्होंने जूनियर वकील्स की कुछ माली सहायता भी की, लेकिन काफ़ी उन्हें मुश्किलें आ रही थी। कई जो जूनियर वकील है वो तो काम भी छोड़कर चले गए। आज कचहरी में काफ़ी 9 महीने के बाद कह लीजिए कामकाज शुरू हुआ है। वर्चुअली तो शुरू हो रहा था, लेकिन फिजिकली हियरिंग आज ही शुरू हुई है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि कोविड के नियमों का पालन करें ताकि ये काम जो है जजों का भी ठीक ठाक चलता रहे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।